Welcome students. Today in this video we will discuss about the concept of orbitals and what are the orbit and what are the orbitals, quantum numbers and the shape of the orbitals. Okay. So we start with the first, what is the orbit or the shell? So you know that this is the Bohr atomic. According to the Bohr, this is the nucleus and the electron revolving around the nucleus in fixed energy levels, and these energy levels are called orbit or shells. Okay, these are denoted by K, L, M, N, or N is equal to 1, 2, 3 or 4. So now an orbit is what? An orbit is well defined circular path in which electron revolves around the nucleus of an atom. An orbit is called energy level or energy shell. Okay. There are K shell, L shell, M shell and N shell. So K shell contain maximum 2 electrons, L shell contain maximum 8 electrons, M contain 18 and N contain maximum 32 electron. Okay, so the formula to find out the maximum number of electron in an orbit is 2n square. So we can do it 2 into n square. Suppose we are finding the number of electron in L shell, so for the L shell n is equal to 2. Second shell है ये, तो n is equal to 2, so 2 into 2 square, so you can calculate 2 into 4 is equal to 8. Okay, so this is the answer, 8 electrons. Okay, so L shell can maximum occupy the 8 electrons. After this you can find out the number of electrons in M and L shell also by this formula. Next thing is suborbit. Okay, orbit के बाद suborbit. So you know that suborbit is also called subshell. Okay, or sub energy levels. So what are these are S, P, D, F. Okay, these are S, P, D and F. S क्यों नाम है इसका? Because sharp, spherical, principal, D for diffuse and fundamental से F लिया हुआ. That is the structures are जो S orbital है उसका spherical है. Principal means P subshell has dumbbell shape and D has double dumbbelled, or fundamental it has complex structure. Okay, so now shells which are K, L, M, N, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सबशेल का, तो K कंटेन ओनली 1s, L कंटेन 2s एंड 2p, M contain 3s, 3p, 3d and N contain 4s, 4p, 4d and 4f. So we can easily explain I can easily explain to you by this that it is the nucleus and this is the first shell K. तो K में क्या रहेगा? ओनली 1s. ओके, फिर 2 में 2 सबशेल, 3 में 3 सबशेल और 4 में 4 सबशेल. तो ये 3 हो गया, इसमें 3 सबशेल रहेगी और इसमें रहेगी बेटा 4 सबशेल. तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, इसमें होगा 2s 2p, इसमें 3s 3p and 3d, and the last one 4s 4p 4d and 4f. Okay, so you can easily understand by this that the n is equal to 1 for the first shell K, and the number of subshell in this is also 1. For n is equal to 2, the number of subshell is also 2. And suppose n is equal to 3 for the L shell है ना, K M shell, sorry, M shell में कितना subshell रहेगा? 3 रहेगा. So it is n, by the n we can find out the number of subshell also in any shell. Now the next one is orbitals. After orbit we will study about the orbitals. तो मैं easily आपको यहाँ से explain कर देता हूँ. You can see here that orbit and orbit, orbital and orbit. The orbit is the circular path of the electron in which electron revolving around the nucleus. But orbital is what? Orbital is the whole area where the probability of electron के होने की वहाँ पर क्या रहेगी? Probability रहेगी. वो region पूरा क्या है? Orbital है. और orbit क्या है? That is the circular path. So it is a orbital is what? Orbital is three-dimensional probability area around the nucleus of an atom where the possibility of finding the electron around uh, electron cloud is maximum, means 95%. 100% नहीं होगा, 95% तक उसकी probability होगी इलेक्ट्रॉन के होने की. That area is called the orbital. Okay, the types of orbitals are s orbital, तो only one, that is 1s. Okay, p 3 है, px pyn pz. d जो है ये 1s भी होगा, 2s भी होगा, 3s भी होगा, लेकिन 1 है ओनली ना. d ऑर्बिटल हैज 5 dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. डबल डबल शेप्ड है, ये डबल शेप है, ये स्फेरिकल है. एंड f हैज 7 एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर हमको स्टडी नहीं करना है. ओके, हमें स्ट्रक्चर यहाँ तक ही स्टडी करना है.
बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स है इसलिए. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, व्हाट आर द डिफरेंस. ओके, माइंड में आपके क्वेश्चन आया होगा दैट सर ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है. तो फर्स्ट इज ऑर्बिट इज एन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है. बट ऑर्बिटल इज इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ओके, तो वो पूरा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है, दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल. So it is the circular path, it is the reason. It represents the planar motion of an electron and it represents the 3D motion of an electron around the nucleus. Okay, वो कहीं भी हो सकता है. सपोज ये तो आपको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ही इसको शो करेगा, बट ऑर्बिटल मीन्स वो कहीं पर भी हो सकता है. इट मीन्स वो 3D जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज orbit gives a definite path of an electron and this concept is not in accordance with the uncertainty principle. हमने पहले स्टडी कर लिया इस चीज को ऑलरेडी. तो ऑर्बिटल डज नॉट स्पेसिफाई डिफाइनेट पाथ and accordance to the concept of electron may be anywhere in this region. This concept is in accordance with the uncertainty principle. means Heisenberg के uncertainty principle को ये follow कर रहा है orbital का concept. okay, all orbitals all orbits are circular बट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स. हमने देखा अभी स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल्ड एंड डिफरेंट शेप रहेगी. इसका ओनली एक ही रहेगा, और सर्कुलर पाथ है. ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज सर्कुलर है, कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है. बट इट हैज़ 3 एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स जो आपका एस है वो तो क्या रहेगा बेटा, स्फेरिकल रहेगा, तो इसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है. बट व्हेन वी गो फॉर द पी और गो फॉर दी डबल डम्बल द डी, इसमें डायरेक्शन रहेगा. ओके, वो हम आगे स्टडी भी करेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हम आगे स्टडी करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वांटम नंबर्स. इट इज रिलेटेड टू क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम. So now to describe each electron in an atom in different orbitals, 4 quantum numbers are needed. कितनी? 4 quantum numbers are needed. किसके लिए? Describe the each electron in an atom. Okay, so these are designated as NLMS. तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 4 quantum numbers NLMS. Okay, सिंपल बात करूँ मैं तो सपोज मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ. एनी स्टूडेंट और फॉर एनी वन द एड्रेस इज व्हाट. किसी का भी एड्रेस क्या होता है? एड्रेस मीन्स उसका सिटी. ओके, सिटी उसका एरिया या उसका टाउन है वो, फिर उसका जो गली है, उसका जो स्ट्रीट नंबर है, उसका जो हाउस नंबर है, ये सारा उसका एड्रेस होगा. तो विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर वी कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर एक्चुअल में, एटम में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये हम क्वांटम नंबर से फाइंड आउट करेंगे. तो सिंपल माइंड में सेट कर लो, क्वांटम नंबर, बाय द क्वांटम नंबर वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ओके, पोजीशन क्या है उसका, वो कहाँ पर प्लेस कर रहा है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. तो क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल. किसके बारे में देखो, हम स्टार्टिंग से चलेंगे. सबसे पहले शेल पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद जाएंगे हम सब शेल. ठीक है, सब शेल. ओके, तो शेल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सब शेल के बारे में कौन देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर. और वन बाय वन हम आगे चलेंगे. सो नाउ इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है, इट विल बी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी शेल और लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सपोज वैल्यू इज इक्वल टू लिखा हुआ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इन 1 शेल और 2 शेल और 3 और 4 शेल. के के लिए एन की वैल्यू होती है 1, यू नो दैट. एल फॉर एन इज इक्वल टू 2, फॉर एम इट इज 3 एंड फॉर एन इज इक्वल टू 4. सो थोड़ा सा हम अगर डीप में जाते हैं तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, सपोज यहाँ पर न्यूक्लियस है. ओके, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो सेकंड शेल में है, तो सेकंड शेल में फाइंड आउट हो रहा है किससे, एन इज इक्वल टू 2 से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, तो ये आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो जाएगी. ओके, सो if n is equal to 1 it is closest to the nucleus and has lowest energy. So value of n increases, distance of electron from nucleus increases. ये nucleus है, ये आपका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो नंबर ऑफ n इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 1 2 3. तो आप देखो यहाँ से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है. n इज इक्वल टू 3 है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में और कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट विच इज मोर नियर टू द न्यूक्लियस. ओके, सो इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बताएगा. ओके, किस फॉर्मूला से, ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप चेक करो, इसमें एन क्या है, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, ये पूरा डेरिवेशन से आया बोर के मॉडल के एनर्जी से. तो माइनस 131.8 अपॉन एन स्क्वायर,
तो ये तो पूरा वैल्यू हो गया कांस्टेंट, और एन स्क्वायर की वैल्यू से वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी। फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, सपोज वी फाइंड आउट करते हैं के शेल मीन्स फर्स्ट शेल, तो 1 का स्क्वायर इट इज -1311.8 किलो जूल पर मोल। ओके, सपोज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, एल मीन्स एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर, दैट टाइम दैट विल बी -327.9 किलो जूल पर मोल। और एम शेल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं E3 इज इक्वल टू, तो अपॉन में 3 स्क्वायर हो जाएगा, इट इज डिवाइडेड बाई 9, तो इट इज -145.7 किलो जूल पर मोल। सो वी कैन अंडरस्टूड that we understood that the it can provide the information or the about the energy of the electron. Thus the principal quantum number gives the average distance of the electron from the nucleus, size of the electron, cloud or shell and energy associated with it. तो दो काम हो गए इसके, एक तो डिस्टेंस बता दिया, एक एनर्जी बता दी। ओके, तो नाउ द सेकंड वन इज, अच्छा एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी 1 2, एन नेवर बी जीरो, कभी जीरो शेल नहीं होगी, या तो 1 शेल होगी, 2 शेल होगी, 3 4 एंड सो ऑन। ओके, so now next is azimuthal quantum number which is denoted by small l. Okay, this quantum number determines the angular momentum of the electron. सबका अपना अपना कोई फंक्शन है, कोई वर्क है, ओके, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बेटा अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो वैल्यू ऑफ एल किस पर डिपेंड करेगा, मैं सिंपल बोलूँ तो इट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब शेल। तो उसने शेल के बारे में बताया, इट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सब शेल। तो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, शेल देन सब शेल एन देन एल। ओके, सो एल की वैल्यू डिपेंड करेगी एन पे, कैसे, वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, इट विल नेवर बी इक्वल टू एन, कभी भी ये एन के इक्वल नहीं होगा, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है दैट विल बी रॉन्ग। सो 0 टू n माइनस 1। Okay, n is the principal quantum number. The azimuthal quantum number gives the following information. First one is about the subshell. सपोज करो n इज इक्वल टू 1 है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 मीन्स दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 ना, दैट इज दी n माइनस 1, इट मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 मीन्स सबशेल कौन सा हो गया, अच्छा इसके लिए मैं कोई वैल्यू बता देता हूँ आपको, लिसन, s जो है सबशेल उसका वैल्यू 0, p का वैल्यू है 1, और d के लिए बेटा 2 और f के लिए 3 है। तो जब l की वैल्यू ये आती है, समझ जाना है दैट इज, सपोज वैल्यू ऑफ l इज 0, तो समझना है वो कौन है, s सबशेल है। सपोज 1 है तो वो p है, 2 है तो d है, एंड 3 है तो f है। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे बाय द क्वेश्चन, हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं l इजिकल टू 0, सपोज n इजिकल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू n माइनस 1, तो 0 टू क्या हो जाएगा 1 2। ओके, सॉरी, l इज इक्वल टू 1, 0 और 1 होगा यहाँ पर। ओके, इट इज, प्लीज इसको चेक कर लेना एक बार, l इज इक्वल टू 1 2 नहीं होगा, l इज इक्वल टू कब होगा 0 और 1 होगा, तो दीज आर टू सबशेल्स, 0 मीन्स s और l 1 मीन्स p, तो देर आर टू सबशेल्स दैट विल बी 2 एंड 2, तो 2s एंड 2p, तो 2 के अंदर 2 हो गए, मैंने बताया था, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। ओके, सो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, तो 3 मीन्स क्या हो गया 0, 3 माइनस 1 इज, सॉरी n माइनस 1 तक पूरा जाना है ना, तो n माइनस 2 1 और n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2, तो देर आर 3 सबशेल। तो s मीन्स क्या हो गया, 0 मीन्स क्या हो गया s, 1 मीन्स p और 2 मीन्स d, तो ये हो जाएगा 3s 3p और 3d। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है ना। उसके बाद हम चेक करते थे नंबर ऑफ सबशेल इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, वो मैंने पहले बता दिया आपको, अगर n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो उसमें सबशेल भी कितनी आ रही है बेटा 2 ही आ रही है ना। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ L designated 0 S 1 P 2 D 3 F 4 G एंड 5 H, तो इन सब की वैल्यूज हैं। ओके, हम फाइंड आउट करेंगे आगे भी। सो नाउ यहाँ से क्वेश्चन आप देख लो, बहुत इजी कर रखा है मैंने इसको। वैसे अगर n की, सपोज n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स l की वैल्यू की 0 हो गई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं n l लिखते हैं ना। यहाँ पर n का हम वैल्यू लिखेंगे, n इज 1 और l क्या हो गया 0, दैट इज द सबशेल इज 1s, ये कहाँ पर है 1s में। ठीक है, ऐसे ही आप 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चेक कर सकते हो। सपोज मैं 3 के लिए चेक करता हूँ यहाँ पर, 3 के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 0 1 और 2, हाउ मेनी 3 सबशेल, 0 मीन्स s हो गया, तो 3s 3p और 3d। ऐसे ही लास्ट में है 4s 4p 4d और 4f। क्लियर है। नेक्स्ट, इट गिव्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस शेल्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, द सबशेल विद इन अ गिवन शेल डिफर स्लाइटली इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल, जैसे एल का वैल्यू इंक्रीज होगा, आप चेक करो यहाँ पर 4s, एल इजिकल टू 0, एल इजिकल टू 1p, एल इजिकल टू
2d और l इज इक्वल टू 3 है तो f है। तो चेक करो आप 4 वाली शेल में आपके पास कौन रहेंगे, 4s 4p 4d एंड 4f है ना। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 हो गया। तो 4 हो गया। इनमें से एनर्जी का अगर ऑर्डर निकाले तो ऑर्डर ये रहेगा, एज द वैल्यू ऑफ एल इंक्रीजेज एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो दिस क्वांटम नंबर गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास, h अपॉन 2 पाई रूट एल एल प्लस वन। तो व्हाट इज दिस एल, इट इज द azimuthal quantum number. So we can say azimuthal quantum number gives the information about the angular momentum and energy of the electron. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h रूट एल एल प्लस वन। ओके, सो ये this h means h upon 2 pi. Now angular momentum only depend on the value of L, not on the value of n. It means 1s 2s 3s etc. इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। एस में कहीं पर भी होगा उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, बिकॉज वो एल पर डिपेंड कर रहा है। एन तो चेंज हो रहा है 1 2 3, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड ऑल पी इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम एंगुलर मोमेंटम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Thus, the azimuthal quantum number determines the subshell in a given principal shell, angular momentum and relative energy of various subshell. अभी बताया हमने 4s से ज़्यादा 4p का है, देन 4f सॉरी 4d देन 4f ना। नेक्स्ट 3 इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमको डिनोट करते हैं m और ml भी लिखते हैं इसको। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखना आप क्या, स्टार्टिंग में हमको इन्फॉर्मेशन मिला शेल, किससे मिला, n से, देन सब शेल, देन ऑर्बिटल। ओके, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा सीक्वेंस वाइज, एन एल और एम तक हम आ गए। ओके, तो ऑर्बिटल के बारे में बताया कि मीन्स इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है इन गिवन सबशेल। चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूवमेंट करता है, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो ड्यू टू इन्फ्लुएंस with external magnetic field, electron in a given subshell orientate themselves in certain preferred region, जिसको हम बोलते हैं orbitals. And these क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये आपको याद रखना है जनरली, इतना डेफिनेशन और इतना एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं पूछेंगे, बट दैट इज द इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। सपोज हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बेटा एल पे। चेक करो एन का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एल पे, और एम का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, एल पे करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज माइनस एल टू प्लस एल। ओके, एल की वैल्यू माइनस हो सकती है ना, तो चेक करें एल की वैल्यू सपोज एल इज इक्वल टू माइनस नहीं होगा, एल इज जीरो से स्टार्ट होगा, बट एम विल बी एल में भी माइनस और प्लस। एल इज इक्वल टू जीरो है तो माइनस टू प्लस जाना है, तो माइनस जीरो टू प्लस जीरो क्या हुआ, जीरो हुआ, तो एम की वैल्यू जीरो। एल इज इक्वल टू वन है तो माइनस वन टू प्लस वन, तो माइनस वन जीरो प्लस वन, तो कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, तीन ऑर्बिटल हो गए, थ्री ऑर्बिटल्स हो गए। एल की वैल्यू है टू, दैट मीन्स माइनस टू माइनस वन प्लस टू, देयर आर फाइव। एल इज इक्वल टू थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा, सेवन ऑर्बिटल हो गए। पहले वाले में फाइव ऑर्बिटल हो गए, और उसके पहले वाले में थ्री ऑर्बिटल हो गए, और उसके पहले वाले में कितना हो गया, एम इज इक्वल टू जीरो। सो थ्री मीन्स क्या हो गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये क्या हो गया, डी वाले फाइव होते हैं और सेवन वाले कितने होते हैं, सॉरी सेवन कौन से होते हैं, एफ होते हैं सेवन, डी होते हैं फाइव, पी होते थ्री। तो ये ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको किसकी हेल्प से फाइंड आउट होगा, दैट विल बी बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना था, शॉर्ट फॉर्मूला है 12 प्लस वन। चेक कर सकते हो आप इसको, 12 प्लस वन चेक करते हैं। सपोज एल का वैल्यू हमारे पास में है वन मीन्स एल का वैल्यू वन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पी सबशेल। इस पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, सो वी कैन राइट 12 प्लस वन, 12 मीन्स टू इंटू वन प्लस वन, तो टू इंटू सॉरी टू इंटू वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया, टू प्लस वन थ्री। ओके, अभी हमने ये चेक किया था, पी में कितना होता है, थ्री होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, सो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक सिंगल ऑर्बिटल में देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई बाई टू, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एम एस। द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग, तो सिंपल बता दूं मैं आपको, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स है किसी ऑर्बिटल में, तो उनका जो रोटेशन है बेटा वो सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। सो दे विल रिवॉल्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक क्लॉक वाइज है तो एक एंटी क्लॉक वाइज है ना, एक क्लॉक वाइज है तो एक एंटी क्लॉक वाइज है। तो सपोज हम इसको लिख रहे हैं प्लस हाफ, तो देन इट विल बी माइनस हाफ, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये प्लस हाफ तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। सो दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसको बारे में बताएगा आपको, दैट इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ द
electron. So the electron in atom is not only revolving around the nucleus but is also spinning around the on axis. This quantum number describes the spin orientation of the electron. So this line is very important. Value -half to +half. एक बात याद रखना, n डिपेंड कर रहा था l पे, l डिपेंड कर रहा था n l पे डिपेंड, सॉरी l डिपेंड ऑन n, ठीक है, एंड m डिपेंड ऑन l, बट दिस s डिपेंड ऑन, नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दिस. इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी, सो ध्यान रखना. दिस क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर 3 क्वांटम नंबर्स. स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, रूट एस एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई. फॉर स्पिन क्वांटम नंबर एस इज इक्वल टू हाफ. ओके, सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना निकलेगा, हाफ प्लस वन एच अपॉन 2 पाई. यहाँ से फाइंड होगा रूट 3 अपॉन 4 एच अपॉन, सॉरी रूट 3 एच अपॉन 4 पाई. ओके, एन से क्या निकालोगे, शेल, एल से सब शेल, एम से ऑर्बिटल और एस से स्पिन. तो ये सारा आपका क्वांटम नंबर्स फिनिश हो गया. तो इन शॉर्ट लिखें तो यही हो गया आपका एन शेल, एल सब शेल, एम ऑर्बिटल एंड एस स्पिन. उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम है जो है वो भी आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा. एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से. यूजिंग द SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब दी ऑर्बिटल. तो चेक करते हैं हम, n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 है, तो n को पहले लिखते हैं और l को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ से चेक करो, n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट a बता रहा हूँ मैं ना, a में n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 और l इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या हो गया, s हो गया, दैट विल बी 1s ऑर्बिटल. n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2, 3 और 2 किसके लिए होगा, l की वैल्यू 0 1 2 SPD, तो 3D हो गया. ऐसे ही आप चेक करो, ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 4f और n इज इक्वल टू 4, तो ये 4, l इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो दैट विल बी 4d. तो ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो. द बाय दिस नोटेशन यू कैन फाइंड आउट द ऑर्बिटल. व्हाट सबशेल आर पॉसिबल इन n इज इक्वल टू 3 एनर्जी. तो वी नो दैट 3 में क्या रहता है, 3s 3p और 3d. ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सिस्टमेटिकली. तो n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 1 2. 0 1 2 मीन्स 0 मीन्स s, 1 मीन्स p, 2 मीन्स d. तो देयर आर 3 सबशेल्स. ओके, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या रहेगा, 2l प्लस 1. तो चेक कर लो, इसके लिए फर्स्ट 0 के लिए चेक करोगे तो 1, l 1 के लिए चेक करोगे 3 और 2 के लिए चेक करोगे तो 5. टोटल कितने हो गए, 3 3p और 3d. तो टोटल आप ये देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 हो गए. तो 9 ऑर्बिटल होते हैं किसमें, 3 वाले में, 3 एनर्जी शेल में. तो 3s 3p और 3d. तो हम जानते हैं s में कितना रहता है, ओनली 1, p में 3 और d में बेटा 5 होते हैं. हमने फाइंड आउट किया था अभी 2l प्लस 1 फॉर्मूला से. तो दैट विल बी 9. ओके, d के अंदर कितने होते हैं बेटा, टोटल 9 हो गए. सॉरी, जो एनर्जी लेवल है 3 उसके अंदर 9 हो गए टोटल. 9 इंटू 2 कर दोगे, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में सीखा था इसको. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो जनरली बता देता हूँ मैं, एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल. कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं. ये आपको स्फेरिकल दिख रहा है और इनके बीच में इसके लिए तो कोई भी नोड नहीं है, बट यहाँ पर देखो इनके बिटवीन 1s एंड 2s ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसको बोलते हैं बेटा नोड्स. तो आप चेक कर सकते हो, इसके लिए 2 नोड्स है, इसके लिए 1 नोड्स है, इसके लिए 0 नोड्स है. 2s ऑर्बिटल इज ऑल्सो नॉन डायरेक्शनल and spherically symmetrical. तो probability density PD means probability density maximum at the nucleus के पास में maximum होगी and become smaller at large distance. जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन की PD जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. ओके, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन का होने का प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा. सो इफेक्टिव वॉल्यूम साइज ऑफ 2s, इफेक्टिव वॉल्यूम साइज ऑफ 1s. साइज ऑफ s ऑर्बिटल 1s से 2s बड़ा होता है, 2s से 3s बड़ा होता है, 3s से 4s बड़ा होता है, ठीक है, एज इफेक्टिव वॉल्यूम साइज इंक्रीजेस. ये आप समझ ही रहे ऑलरेडी. शेप ऑफ पी ऑर्बिटल. तो पी कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ये आप चेक करो यहाँ पर डम्बल्ड है, ऐसे डम्बल शेप है, ठीक है. और ये 3 होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई पे होगा और एक जेड पे होगा. अकॉर्डिंग टू दिस देयर नेम इज 2px. अच्छा, 1 में कभी भी p नहीं आएगा ना, 1 में कभी p नहीं आएगा, ये 2 से स्टार्ट होगा. तो 2s 2p और सॉरी 2px 2py और 2pz, बिकॉज ये z एक्सिस पे है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोज एक्स एक्सिस पे है तो इसको बोलते हैं 2px, ठीक है. ये तो बहुत ईजी है बनाना है इसको. सो इट मीन्स देर आर, आप चेक करो p के लिए l इजिकल टू 1 होता है तो m क्या हो जाएगा, -1 0 और +1 मीन्स देर आर 3 p ऑर्बिटल्स, px py एंड pz. शेप कैसी है, डबल शेप है. दिस 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जीज बट डिफर इन ओरिएंटेशन. एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई पे है और एक जेड पे है. ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स सिमेट्रिकल अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस.
उसके बाद ये हो गया द टू लोब्स ऑफ ए पर्टिकुलर, अच्छा कितनी लोब्स होती है, तो टू लोब्स से आप चेक कर रहे हो, ये से टू लोब्स है, ये वो फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू लोब्स ऑफ ए p ऑर्बिटल आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा इसमें एक प्लेन रहेगा जिसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कोई एक प्लेन है जैसे ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए सिंगल सिंगल प्लेन रहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो रहेगी। उस नोडल को हम लास्ट में इस प्लेन को समझेंगे। द टू lobes of a p orbital are separated by a plane having zero electron density. This is called nodal plane, also called angular nodes. Okay, so number of angular nodes of p orbital is 1. px के लिए कौन सा होगा, yz, yz पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। py के लिए xz, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। pz के लिए xy, तो you can easily remind this in your mind that for px there is all for all p देर इज ओनली वन नोडल प्लेन। तो पी एक्स के लिए कौन सा है, वाई जेड, पी वाई के लिए एक्स जेड और पी जेड के लिए एक्स वाई, ठीक है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर डबल डम्बल्ड है, यहाँ पर 5 होंगे, बिकॉज आप यहाँ से चेक कर सकते हो कैसे 5 निकाला मैंने, डबल डम्बल्ड रहेगा। डबल डम्बल का मतलब क्या हो गया, देर आर 2 डम्बल्स, ओके, डबल डम्बल शेप है इसकी। और ये डिफरेंट काइंड है, ये आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ओके। ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप है अलोंग द एक्सिस। अच्छा एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको, इसमें से 3 अलोंग द एक्सिस होते हैं, सॉरी 2 अलोंग द एक्सिस रहेंगे और 3 जो है वो बिटवीन द एक्सिस रहेंगे। आप इसको चेक करो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है, मतलब एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो एक्सिस है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स दे आर कॉल्ड अलोंग द एक्सिस। और यहाँ चेक करो कोई भी एक्सिस पे नहीं है, ये 3D में देखोगे तो एक्सिस पे नहीं है, ये बिटवीन द एक्सिस है। सो दिस 3 आर इन द बिटवीन द एक्सिस, दीज आर अलोंग द एक्सिस। लास्ट वन इज नोडल एंड नोडल प्लेन्स। तो ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर ऐसा कोई प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो, दैट इज कॉल्ड नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं रेडियल नोड्स। अगर स्फेरिकल शेप है तो रेडियल नोड्स रहेगा, अ स्फेरिकल सरफेस विथ एन ऑर्बिटल ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस नहीं है, इज कॉल्ड स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन ऑर्बिटल इज n माइनस एल माइनस वन। तो आपको जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल लोगे, अभी हम सीखेंगे इसको। नोडल प्लेन क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड, ओके। रेडियल नोड को बेटा बोलते हैं नोड्स, दैट इज नोड्स, देर आर नोड्स, और इसको बोलेंगे एंगुलर नोड। अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से प्लेन निकला है, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिटल, ओके। यहाँ से सपोज ये प्लेन निकाला मैंने ऐसे, ऐसे ये न्यूक्लियस से होता हुआ ऐसे प्लेन निकल गया। इस प्लेन में आप चेक करो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ इस प्लेन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस नहीं है, उस प्लेन को हम बोलेंगे नोडल प्लेन, ये एंगुलर नोड। अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल फॉर p ऑर्बिटल्स 1, फॉर s ऑर्बिटल 0। s स्फेरिकल है, उसमें कोई एंगल तो है नहीं, एंगुलर नोड तो बनेगा नहीं, हाँ, बट p के लिए कितना रहेगा, 1 रहेगा। सो एंगुलर नोड फॉर s 0, p फॉर 1 और d फॉर 2, ये डिपेंड करता है इनकी किस पे, इनकी शेप पे। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करना है, n माइनस वन। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, और रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन। तो इसको चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला को हम प्रूव कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज दी फर्स्ट फॉर 1s। तो 1s में रेडियल नोड कितना रहेगा, 0, एंगुलर नोड कितना रहेगा, 0। चीज़ क्या है एक्चुअली, आप समझना है इसको, ये आपका ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ तो सब जगह इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो दैट मीन इसके लिए रेडियल नोड 0 रहेगा, एंगुलर नोड तो ऑलरेडी 0 ही होगा, तो टोटल नोड्स कितने हो गए, 0। बट सपोज इसके बाहर आपने बना लिया, दैट इज द सेकंड शेल। अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इनके बीच में ये कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, दैट मीन्स फॉर 2s के लिए कितना रहेगा, एक रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा, दोनों के बीच का एरिया ऐसा। तो 2s के लिए रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड तो 0 ही होगा बिकॉज स्फेरिकल है। रेडियल नोड कितना रहेगा, 1। रेडियल नोड कैसे आप चेक करो, ये 1s है और ये 2s है, इनके बीच का जो ये स्पेस है दैट इज द रेडियल नोड, ओके। तो 1 हो गया, तो टोटल नोड कितना हो गया, 1 हो गया। 2p के लिए चेक करो, फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकते हो, 2p के लिए चेक करो, 2p के लिए रेडियल नोड क्या रहेगा, 0, और एंगुलर नोड 1। ईच एंड एवरी p हैज़ 1 एंगुलर नोड, तो यहाँ पर 1 हो गया टोटल। 3s के लिए चेक करते हैं, रेडियल नोड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, कैसे रहेंगे,
दैट इज़ दी 1s, दैट इज़ दी 2s, दैट इज़ दी 3s। तो चेक करो, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो सिंपल बात करूँ मैं तो 3 माइनस क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया, इजिकल टू क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। 4 के लिए कितना रहेगा, 4 माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 4 के लिए भी चेक कर सकते हो आप, है ना। तो 3s में 2 हो गया। अच्छा, एस है मीन्स एंगुलर नोड 0, तो टोटल 2 हो गया। 3p के लिए चेक करते हैं, रेडियल नोड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि बिकॉज क्यों होगा ये भी चेक करना है हमको ना। तो ये 1s हो गया, ये 2s है, तो 2 कहाँ से, 2s में आप चेक करो, 2s के बाद में कौन है, 2p। तो p कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो इसके पहले वाला रेडियल नोड तो काउंट होगा नहीं, तो यहाँ से अब आ गया बेटा 3p। तो 3p के लिए चेक करो, p के कॉन्सेप्ट में 2p 3p, बीच में ये वाला स्पेस है, दैट इज द रेडियल नोड। ओके, और ऑलवेज p के लिए एंगुलर नोड 1, तो 1 + 1 2 टोटल नोड्स हो गए। लास्ट है बेटा 3d। 3d में चेक करो, d है, इट मीन्स रेडियल नोड 0, और एंगुलर नोड्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। और वैसे ही आप चेक कर लो 3 के लिए मीन्स 3d आप 0 कैसे हो गया, तो वो भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज 1s, सॉरी, फर्स्टली 1s आता है, फिर 2s 2p, फिर 3s और 3d। तो चेक करो 3d से पहले कोई d है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके लिए रेडियल नोड तो कहीं होगा नहीं, काउंट ही नहीं होगा। हाँ, 3d के लिए जो अपना नोट्स रहेंगे, एंगुलर नोट्स, वो रहेंगे 2, डबल डबल में 2 नोट्स बनेंगे ऐसे। ओके, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो एंगुलर नोट्स। तो टोटल कितना हो गया, 0 + 2 2। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको टॉपिक अच्छा समझ में आ गया, इसको फिर से एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट्स हो आप पूछ लेना, ये टॉपिक हमारे यहाँ पर आज का क्लियर होता है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।